यथा वस्तूनि पश्यामि हेमादीनि ततः ततः पर्यतन्ति नरेषु एवं जीवयोनिषु कर्तृषु. Just as gold and other commodities are continuously transferred from one place to another in due course of purchase and sale, so the living entity, as a result of its fruitive activity, wanders throughout the entire universe, being injected into various bodies and different species of life by one kind of father after another. Now, Chitraketu is hearing spiritual knowledge from his own son. Arrangement of the Narada, some miracle has happened. The dead child is awakened. And now this child is asking Narad Muni, why did you call me? And Chitraketu and his wife shout, my dear son, my dear son. At this moment they have no spiritual knowledge. They're still so much on material plane. And the child replies, because he had already left the body, he's not just making drama. Which father, mother? Wait a minute. Because so many lives. Which father, mother? And then the child is giving this knowledge, and Chitraketu is hearing in the whole assembly. And the example given is very nice. Just like a gold, it's in somebody's possession. You sell it to somebody, it is in his possession now. Now it belongs to him. So similarly, our identification is continuously changing from one body to another. Suppose somebody is born in India, whole life he sees, what is this, Pakistan, they do this, Pakistan, they do that. The mind is worked up like that. And he dies if he goes to Pakistan, because he's thinking of Pakistan. And then he's born there, it's India, they do like that. This is so meaningless actually, our identification, so meaningless. So this is not only we understand we are not body and soul, we have to understand the whole dynamics, how it's happening. There are lakhs of species, and in this species we have an opportunity for gradual advancement, experiential learning. And in human form of life, there is an opportunity. Brahmanda Brahmite, therefore Prabhupada speaking in this verse, very nice point. Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev, some fortunate soul. Brahmanda Brahmite, he is traveling throughout the universe. Some, Kono means not everybody. Very rare. Bhagyavan Jeev, some very fortunate soul. In this rotation, going through this species to that species, jumping from one body to another body to another body to another body, as suffering, the inconvenience. What are the inconvenience? Birth, old age, disease, death. That is common factor throughout. Everywhere he is going to suffer birth, old age, disease and death. That he is not able to surmount. But in human form of life, he can get a opportunity to surmount this birth and death. And what is that? How does he get that opportunity? Guru Krishna Prasadify, by the joint venture. Spiritual life is a joint venture between Guru and Krishna. By the mercy of Guru and mercy of Krishna. It's true, it's one only, in the sense Guru repeats the words of Krishna and he acts on the impetus given by Krishna to preach, on the order of Krishna to preach. So there is one sense, there is no difference. The Guru is pleased, Krishna is also pleased. And like that. Guru Krishna Prasade, by the mercy of the Guru and Krishna, what happens? Bhakti Lata Bija. It gives desire to serve Krishna. Very, very adbhuta it is.
Very, very adbhuta. It is actually a transcendental phenomena. It is not a material phenomena. Krishna Bhakti is not a material phenomena. Some concept I got, no. At least person should understand he agrees to follow some set of rules which will give him Krishna Bhakti. Just like we meet so many people. We say very simple rules. Live a pure life and chant Harinam. That's all. But if he agrees to follow that, his life is now becomes very, very fortunate. Brahmanda Brahmite. Otherwise, he's rotating throughout the universe. There are millions of situations he desires. Therefore, there are millions of material bodies are there. And in those bodies, he tries to enjoy. And the whole learning is by frustration. Gradually, okay, it doesn't work out. Okay, it doesn't work out. Okay, this doesn't work out. Let me try this. Okay, try. If I fly in the air, I'll be really happy. Fly. You get a bird's body, you fly. I'm not happy now. Okay, now if I go inside water and I swim, I'll be very happy. I'll get a fish body. Go. Now if I become a big size and I can scare everybody, okay, become an elephant. Now I can run with a high speed and then people will be scared of me. Okay, become a tiger. So different species of life, there are different kind of enjoyment which are given. Correct? Oh, I can move around in the land. Okay, become a snake. Different varieties of species we keep imagining. All we are doing in our life, we are keep imagining different kind of enjoyments and Krishna keeps giving. Okay, try this. No, this way I can. Okay, try this. We are keep getting one after another, so many kind of enjoyments. And then what happens? We're not happy. We don't know what to do. What is wrong actually? We don't know. In animal species of life, the experience is given so strongly, he can't even know what's happening. It's totally trapped. Just like sometimes the human beings become like animals. They're drinking, we say don't drink, they still drink. They're smoking, we say don't smoke, they still smoke. They're eating meat, we say don't do that, they still do. Correct? They're animals actually. Their next life is guaranteed an animal because he does not want to hear anything and he does not want to learn anything by hearing. He wants to behave like an animal. Next life is animal. Go. You are not fit to be a human being. Anybody who indulges in breaking 4 regulated principles is not fit to be a human being. And what are the 4 regulated principles? Intoxication, gambling, illicit sex, meat. He's an animal actually. Then go. Animal kingdom is there. Jump, run. And then what is the difficulty? Birth, old age, disease, death. It's a tremendous pain. It's an intense inconvenience for the soul to go through these 4 kind of sufferings. But when it comes to the human form of life, a great opportunity awakens. Now there is a nice chance. And what is the chance for? Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev. Now there is an opportunity to take shelter of an acharya. Just like a doctor gives a prescription, to give the acharya gives certain rules and regulations. When we follow those rules and regulations, he is pleased. It is not that I have got a process to become Krishna conscious. No? You have to follow the process. When you follow the process, Guru Krishna becomes pleased. That's why Krishna Bhakti touches your heart. It's not that just by process you are getting Krishna Bhakti. By following the rules, because rules and regulations are finally material. No, what you are doing? No interrogation, no, what is material phenomena? No, what is spiritual about it? No, your eagerness to follow the rules and regulation that pleases Guru and Krishna, then something spiritual happens. Krishna Bhakti touches your heart. Therefore, it says Guru Krishna Prasade. Prasade means when they are pleased. Prasad. प्रसाद मिलता है ना, अंधेरे प्रसाद मिलता है जब भगवान को अभी भोग लगाए. अब भगवान ऐसा नहीं है घंटा जोर का बजाए, नहीं लेंगे, मन नहीं है तो नहीं लेंगे. गुरु कृष्ण प्रसाद उनका जॉइंट वेंचर होगा भी, बट डिपेंड्स ऑन कितना भक्ति से आपने ऑफर किया, तब आपको एक मर्सी मिलता है. दैट इज कॉल्ड प्रसाद. प्रसाद मीन मर्सी. कह रहे कैसे? खुश होके आपने भक्ति से बोला आप थोड़ा ले लीजिए, हमने कुछ कोशिश करा है, जरूर लेंगे. लेकिन आप बोलो हाँ मैंने जोर का घंटा बजाया, लो, नहीं लेंगे. वो जॉइंट वेंचर काम नहीं करेगा, फिर बैठे रहो.
प्रभुपाद जी बोलते थे 56 भोग बनाया है एंड कृष्णा मस्ट टेक इट। प्रभुपाद जी बोले कृष्णा को फोर्स नहीं कर सकते आप, वैसे ही रहेगी प्लेट, ही विल नॉट टेक। ठीक है, सो देयरफॉर इट इज विद a devotion we have to offer, and when you offer a devotion, definitely Krishna will accept it. And how the devotion will come? That will come by following regulations and chanting Hare Krishna. If you do that, sincerely you try to do, then Guru Krishna is pleased, and when they are pleased, then Krishna bhakti will grow. This is a very mystic phenomena. Just like even the creation of the world is not automatic. They say it happened automatically. It did not happen automatically. Every time there was the glance of Krishna. When the universes were created, it was all dead actually. Nothing was moving. Then Mahavishnu glanced at the material universe. उनकी कृपा से glance किया. स अश्रजा स अक्षजा. This is there in the Vedanta Sutra. He glanced. हमारे glance करने से कुछ नहीं होता. But Krishna glanced and trillions of living entities took birth in the material nature just by his glance. Even it is said the division as the creation of the nature from Akash, there is earth, water, fire, ether. From ether, gradually we created a reverse creation happens. From ether comes air, and from air comes fire. From fire comes water. From water comes earth, stage by stage. And each place is glance of Krishna. Krishna glances, or Mahavishnu glances. That is given or not? It's the glance of the Lord. It's the will of the Lord. The matter starts differentiating. Correct? So same way, actually, our bhakti also advances step by step by the glance of Krishna. ऐसा नहीं है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण. आई हैव टोल्ड सो मेनी टाइम, इट इज नॉट शुगर केन का जूस ऐसा लगा दिया बन गए खुश हो गए, नहीं है. वी हैव टू सिंसियरली डू, अटेंटिवली वी हियर द होली नेम विद रिस्पेक्ट. देयरफॉर होली नेम को बोला जाता है नाम प्रभु. उनको प्रभु का नाम दिया जाता है. प्रभु मतलब ही इज अ पर्सन. देयरफॉर 10 अपराध जो हैं आप इजीली समझ सकते हैं. क्यों 10 अपराध समझ सकते हो? बिकॉज वो प्रभु है, उसको बुरा लगता है. अगर आप भक्त की निंदा करोगे तो नाम प्रभु को बहुत बुरा लगता है. तो फिर क्या होता है, आप जप करो आपको टेस्ट नहीं आएगा. टेस्ट नहीं आएगा आप जप नहीं कर पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा. जब हरे कृष्ण मन नहीं कर रहा, हरे कृष्ण, बिकॉज बिना टेस्ट का कोई कुछ नहीं कर सकता. जैसे आप खाना खा रहे हो, टेस्ट नहीं है आप खा नहीं पाओगे, थोड़ा खा के छोड़ दोगे. तो सिमिलरली जप करने का मन नहीं करता आजकल ना, टेस्ट है ही नहीं. तो टेस्ट चाहिए उसके. और टेस्ट कैसे आएगा? बाय सर्विंग द होली नेम. अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादो. अगर सेवा के स्पिरिट से अगर आप भगवान की तरफ जाएंगे, बिगिनिंग फ्रॉम द टंग, तो क्या होगा? स्वयमेव स्फुरतेता, आपको इट विल डिवोशनली मैनिफेस्ट. सो वी शुड टेक नाम प्रभु विद ग्रेट रेस्पेक्ट एंड चैंट, एंड देन इट विल एडवांस. दैट्स द बिगिनिंग. श्रद्धा also comes by the mercy of devotees, by mercy of the holy name. कहीं पे हरि नाम हो रहा था, चले गए, अच्छा लगा, श्रद्धा शुरू हो गई, तो आध्यात्मिक जीवन प्रगति हो गया. कभी मजाक करते हैं, कोई बाइक लेके मंदिर के चारों तरफ घूम गया, उसकी अज्ञात सुकृति हो गई. जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे थे, तो हर दिन वो बुक्स, उनके पास पैसे नहीं थे, और जो उनके पास थोड़ी किताबें थी उन्होंने बुक स्टोर्स को दे के रखी थी, और हर दिन जाके पूछे थे कुछ बिका क्या? हाँ बिका, तो उसके पैसे दे दो. ठीक है, किताब दे देते बुक स्टोर में किसी एडवांस के बिना, रख दो, बिका तो दे देना. तो रख दिया बुक स्टोर में, एक बिक गया सेट, तो मिलते थे उनको $10. ऐसे चलाया शुरू में टाइम उनको, दिन पे दिन, हर दिन का बजट ऐसे ही था. $10 है आज, हाँ $5 खर्च हो गए, आधा डॉलर का ये खरीदा. वो हर दिन का अकाउंट बहुत ही सिस्टमेटिक था, बहुत ही सिस्टमेटिक. अगर इतना बड़ा मूवमेंट है तो ये बेसिक चीज़ भी थी. इज़ वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है. एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, सो step by step it starts. So he used to go to the bookstore. One lady used to come every day because बहुत elderly आदमी है, American. So she used to bring a glass of water for him. So what she is doing? अज्ञात सुकृति. उसको मालूम नहीं है बहुत बड़ा संत है, इसका सेवा से मेरे को आध्यात्मिक प्रगति मिलेगी, ये सब मालूम नहीं है. ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा का मन है,
एक बुजुर्ग है, चलो उसका सेवा करते थे, लेकिन बुजुर्ग कौन है? बहुत बड़ा भक्त है, तो उसका सेवा में आपकी आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो गई। करेक्ट? तो दैट इज कॉल्ड अज्ञात सुकृति। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी ने बोला मेरे को ड्रॉप कर दो, आपने ड्रॉप किया, वो मंदिर में ड्रॉप कर दिया आपसे, और मंदिर चला गया, आपने क्या कर दिया? अज्ञात सुकृति। अज्ञात सुकृति मीन्स अभी आपको भगवान का सेवा का मन नहीं है, लेकिन किसी तरह आपसे हाथ से हो गई सेवा। क्योंकि भक्ति कैसे शुरू होती है? अज्ञात सुकृति से शुरू होती है। पहले अज्ञात सुकृति का पहला स्टॉक होता है, फिर श्रद्धा शुरू होती है। श्रद्धा इतना आसान नहीं है, बहुत लोगों को कितना ही बोलो कुछ विश्वास नहीं है। बोलते हैं ना लोगों को मंदिर आओ, नहीं आते, क्यों? विश्वास नहीं है। इसलिए प्रसाद दे देते हैं, थोड़ा प्रसाद खाओ। कैसा था प्रसाद? आपका प्रसाद बहुत अच्छा है, हो गया भगवान का, उसको अज्ञात स्वीकृति मिल गया। करेक्ट? तो इससे कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं हमारा फैमिली में आदमी को इंटरेस्ट नहीं है। अरे बहुत ईजी है उसको पकड़ना, उसको प्रसाद खिलाओ, अच्छा प्रसाद खिलाओ, थोड़ा प्रसाद खाओ, कैसा लगा? अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। कुछ किताब गिफ्ट कर दो, पढ़ लेना कभी, तो कभी तो होगा मूड करेगा, खाली बैठे हैं चलो 2 पेज पढ़ लिए, क्या लिखा है देखूँ तो। अज्ञात स्वीकृति, धीरे धीरे अज्ञात स्वीकृति इकट्ठा होने से भक्ति शुरू होती है। बहुत बड़ा है अज्ञात स्वीकृति, भक्तों के संग में भी होती है। कभी कभी लोग मंदिर आते हैं, उनको भगवान की सेवा की इच्छा नहीं है, लेकिन भक्त अगर नम्र हो तो अच्छा लगता है। अरे यार बड़ा अच्छा आदमी, हम बोल अच्छा लगा था। मेरे को याद है जब बैंगलोर में था, कुछ अपने फ्रेंड्स को लेके जाता था टेम्पल, एंड डिवोटीज से सम वेरी नाइस डिवोटीज, उनसे मिलाता था। हाउ ही स्पीक्स वेरी नाइसली। अब उसको समझ नहीं है क्या बोल रहा है, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी उसको समझने की शक्ति नहीं है। उससे क्या होता है, धीरे धीरे अज्ञात सुकृति इकट्ठा होने से श्रद्धा जाती है, ये सब ठीक है। यहाँ से फिर भगवत भक्ति शुरू होती है, और हर स्टेज में कृष्णा की कृपा की ग्लांस है, गुरु की कृपा की ग्लांस है, नहीं तो आगे नहीं चल सकती। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ये बीज भी मिलता है और आगे प्रगति भी प्रसाद से ही होती है। ठीक है? आपने बहुत ध्यान से नाम जप करा आज, ठीक है, कृष्णा खुश हो गए, प्रगति एक स्टेप आगे जाओगे। अगर आप ऐसा है कि प्रगति अपने आप हो रही है, तो भगवान को प्रार्थना की क्या जरूरत है, उनका नमस्कार करने की जरूरत, अपने आप हो रहा है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा। ठीक है? बेसिकली जो साधना है, साधना प्लीजेस कृष्णा, एंड इफ साधना कृष्णा डज नॉट नोटिस, देन करोड़ों जन्म तक करते रहो नाम जप। जैसे आप किसी को परोठा खिलाए, पूछते हो ना अच्छा लगा क्या? क्यों पूछते हो? क्योंकि वो भी व्यक्ति है, उसको अच्छा लग सकता है, नहीं भी अच्छा लग सकता। अरे मैं सब कुछ डाला था उसमें, तब भी अच्छा नहीं लग रहा, वो तो उसका डिसीजन है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। और कृष्ण भी स्वराट है ना, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने एग्जाम्पल दिया था बहुत इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी मंदिर आए, पुजारी को पूछा भगवान खुश है क्या? और पुजारी बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उसको समझ ही नहीं है। अरे भाई मेन काम तो यही है, ऑफर करके जब किसी को पूछते भगवान को पूछने का ना, आपको अच्छा लगा? हम पूछते नहीं, हाँ अच्छा लगा होगा उनको कोई फ्रीडम ही नहीं है, तो भक्ति नहीं शुरू हुई। अगर आप सोच रहे हैं हाँ आरती करी थी खुश होंगे, जरूर खुश होंगे, नहीं, तब आपकी भक्ति शुरू नहीं हुई। आरती करके भगवान ये स्वीकार कर लीजिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए थे कि आप खाना बनाइए, ये सोचना चाहिए मेरे को खाना बनाना नहीं आता, कभी ये सोचना नहीं आता है, क्योंकि भगवान को तो राधा रानी खिलाते हैं, तुम क्या खिलाओगे? और उनका तो खाना परफेक्ट होता है, कुछ मिस्टेक नहीं होता, और एक डिश और रिपीट नहीं होती नेक्स्ट डिश। हमारा तो हर दिन राइस सांभर, राइस सांभर, राइस सांभर, राइस सांभर, राइस सांभर। उनका भी राधा रानी डिश रिपीट नहीं करती, इतनी डिश आती है उनको। करोड़ों 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 जन्मों से चल रहा है, जन्म नहीं करोड़ों वर्षों से चल रहा है भगवान की सेवा, वो दोबारा सेम चीज़ ऑफर नहीं करती। हम तो हर दिन ही एक चीज़ तो है नहीं, वे किचन में काम एक्चुअली राधा रानी करती हैं, हमको उनका सेवक के रूप में करने का। और जो भी बनाया उसके बाद हमेशा ये नहीं सोचना अरे मेरे को बहुत अच्छा है बन गया राइस, ये बन गया, नहीं, कुछ बनाया क्या बनाया पता नहीं है, और भगवान के आगे रखिए, फिर ऑफर करिए, आप कृपा से स्वीकार करो। मेरी भक्ति भी नहीं है ना मेरे को खाना बनाना आता है, आपको कृपा है, प्लीज़ आप स्वीकार करिए, इसको बोलते हैं भक्ति। तो सिमिलरली हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी इसी तरह होती है। मैंने नाम जप किया, एक्चुअली जप करना नहीं आता मेरे को, आप भगवान प्लीज़ स्वीकार करो। मेरी इच्छा है कि ये जप आपको खुशी दे। जब आप किसी कोई आपका नाम लेता खुशी होती नहीं होती, तो सेम है जब भगवान का नाम लेते हैं भगवान ही बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है? सो इसी तरह हमारा आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भावा, प्रेम। प्रेम मतलब आप भगवान, आप पूरी तरह से भी फिट हो गए, परफेक्ट हो गए। जैसे शुरू में
हम जो भगवान को ऑफरिंग करते हैं वो सोच ले जैसे जली रोटी देना जैसा है, लेकिन भगवान ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अभी आपको सेवा करना नहीं आया, क्यों जली रोटी क्यों दे रहे हो, आता ही नहीं बनाना। और जब अच्छा सा जब आप सेवा कर रहे हैं वो है, वो परफेक्ट आप बना के दे रहे हो, दैट इज कृष्णा इज टोटली प्लीज्ड बाय योर सर्विस। इस समय भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं, ठीक है, जब हमको वी नो हाउ टू हैंडल कृष्णा, ठीक है। सो इन दिस वे द चाइल्ड ऑफ चित्रकेतु बाय अरेंजमेंट ऑफ नारदा इज इंस्ट्रक्टिंग, एंड धीरे धीरे समझ रहा है, चित्रकेतु इज लिसनिंग एंड इज हियरिंग अटेंटिवली बिकॉज ही इज गोइंग टू चेंज नाउ। हमारा क्या है, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कोई चेंज नहीं होता है ना, कोई फर्क नहीं। तो इधर ही इज हियरिंग, चित्रकेतु बट हियरिंग वेरी सबमिसिवली टू व्हाट child is saying. After the Narada will give him mantra, he is accepting the mantra, and within 7 days he achieves total realization. कितने दिन में? 7 दिन में he became perfect. So it can happen in 7 days. अगर आप 7 दिन ध्यान से, therefore कभी भी किसी भी भक्ति के अंग को छोटा नहीं मानने का। पूर्ण शक्ति है किसी भी चीज में। भगवान का आप श्रृंगार कर रहे हो, प्रेम से ध्यान से करिए, क्योंकि उसमें शक्ति इतनी है पोटेंशियली। ऐसा नहीं है कि आप करने से हो गया, नहीं। जैसे नाम जप करो, पोटेंशियली इतना शक्ति है कि एक नाम स्मरण से वैकुंठ धाम मिल जाता है, एक। इसलिए ध्यान से करने का, बिकॉज उसका शक्ति को छोटा नहीं मानने का। सेम वे जब आप भगवान को विग्रह में आप ड्रेस कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखने का इतना ही काफ़ी है वैकुंठ धाम जाने का। तो हर चीज़ ऐसी है, उसको कभी भी कम वैल्यू नहीं देने का। बहुत बहुत शक्ति है। मैं पहले भी बता रहा था, लोग क्या कहते हैं, धाम यात्रा कोई सब कुछ मानते हैं। बिकॉज धाम में जाते हो, वहाँ वो बोलता है इधर आप आ गए, आप तो राधा कुंड में स्नान कर लिए, कृष्ण प्रेम आपको मिल गया, और उस पांडा को 500 रुपये दे के लोग खुश हो जाते हैं, हाँ कृष्ण प्रेम मिल गया मेरे को। उसको रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भाव में करना पड़ता, तब कृष्ण प्रेम मिलता है। पोटेंशियली उसका शक्ति तो इतना है, राधा कुंड का शक्ति इतना है। अगर आप इतना समझ गए वो राधा रानी से अलग नहीं है, आपको उसी समय कृष्ण प्रेम मिलेगा। लेकिन किसको दर्शन है वो राधा रानी के बराबर है, हमको नहीं है दर्शन। तो सिमिलरली जो साधना भी करते हैं, एक एक चीज शक्तिशाली है, उसको ध्यान से करने का, ध्यान से नाम जप करने का, ध्यान से भगवान का सेवा करने का, ध्यान से आरती करने का, एक एक चीज ध्यान से उनका कीर्तन करने का। एक बारी, एक क्षण, प्रभुपाद जी बोलते थे कि कृष्ण को पूरा भी मुस्कुराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा मुस्कुरा गए एक बारी, वो काफ़ी, आपका वैकुंठ धाम का टिकट साइन के साथ रेडी हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली वी शुड टेक वेरी केयरफुली। एक एक क्षण हम कृष्ण जो सेवा कर रहे हैं बहुत ही शक्तिशाली है। हाँ, इसमें लिखा है भगवद गीता में, स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्प, थोड़ा भी कृष्ण का सेवा, ये आपको बहुत भयंकर भय से भी बचा सकता है। और सबसे बड़ा भयंकर भय क्या है? पुनर्जन्म लेना। इतना शक्ति इस प्रोसेस में है, तो ध्यान से करने का। नाम हम देख रहे हैं चित्र के, तो इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, हम भी सुन रहे हैं, बट हम सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकल जाता है। चित्र के तो ध्यान से सुन रहा है, और उसका पूरा जीवन बदलने वाला है, और वो भगवान के दर्शन उसको मिलने वाला है। श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की।